So what is a guarantee of partner? So guarantee of a partner means that it is actually an assurance. It is actually an assurance given to a partner that he will get a minimum amount of profit. If not, then whatever deficiency we have, that deficiency has to be borne by the guaranteeing partner. अब इसको हम समझते हैं, एक बार इसको भी आप रीड कर सकते हैं. Guarantee is an assurance given to the partner of the firm that at least a fixed amount shall be given to him or her irrespective of his or her actual share in profit of the firm. If actual share in profit is less than the guaranteed amount, in that case the deficit amount shall be borne by either by the firm or by any partner as the case may be, or may have been decided by an agreement. Note, this is a very important note, guarantee to a partner is given for a minimum share in profit. So guaranteed amount can also be called minimum share of profit. Guaranteed amount को हम क्या बोल सकते हैं? Minimum share of profit बोल सकते हैं. So if the actual share of in profit is more than the minimum share, that is the guaranteed amount, then guarantee will not work. अब गारंटी कब कब काम करेगा, कब कब नहीं काम करेगा, इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ एक क्वेश्चन भी कराने वाला हूं. लेकिन आप ओरली समझे कि when the actual share of profit, when your routine profit is more than the guaranteed profit, which is the minimum profit, then guarantee will not work. And when your actual share of profit is equals to your guaranteed profit, then again guarantee will not work. Guarantee will only work when your actual share of profit is less than the guaranteed amount, then the guarantee will work. Now what does it mean कि कैसे work करेगा? It means the deficiency has to be find out, calculated, computed from there. Suppose आपकी actual share of profit 20,000 रुपए की है और आपको 30,000 मिल रहा है, तो गारंटी काम नहीं करेगा. आपको जो 30,000 मिल रहा है वो आपका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट आपके पास रहेगा. एंड सपोज इन एनी केस आपके पास 20,000 का आपका मिनिमम अमाउंट है, गारंटीड अमाउंट है, और आपको कोइंसिडेंटली एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आपका 20,000 है, तो वही आपका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट ही आपका गारंटीड अमाउंट हो जाएगा. लेकिन सपोज इन एनी कंडीशन आपका जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 19,999 हो गया एंड गारंटीड कितना मैंने बताया 20,000. सो देयर इज एक्चुअली अ डिफरेंस ऑफ 1 रुपी, बट 1 rupee has to be borne by the guaranteeing partner or the firm, whatever case is stated. डिफरेंस कितने का है? 1 रुपये का है, लेकिन 1 रुपये भी बेयर करना पड़ेगा, बिकॉज आपने जिस पार्टनर को गारंटीड करा है, गारंटीड पार्टनर जो है, आपने एज अ फर्म, एज अ पार्टनर, यू हैव गिवन हिम assurance, you have given a financial promise that he should not get less than that guaranteed amount. तो ये आपको करना पड़ेगा. और डेफिशिएंसी निकालने के लिए 2-3 तरीके होंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूं. पहला केस है व्हेन द गारंटी इज गिवन बाय द फर्म. तो जब गारंटी गिवन बाय द फर्म होगा तो इसका मतलब है इफ शेयर इन एक्चुअल प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटीड अमाउंट, देन गारंटीड अमाउंट टू अ पार्टनर इज फर्स्ट written off against the profit, and then remaining profit are distributed among the remaining partner in the remaining ratio. Second, when guarantee is given by a partner or partners to another partner. So इसके ऊपर भी हम एग्जांपल ले सकते हैं. पहला क्या था कि क्वेश्चन साइलेंट था, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं और ए और बी ने गारंटी करा है सी को, तो इसको बोलते हैं गारंटीड बाय द फर्म. सपोज सेकंड कंडीशन में ए बी सी 3 पार्टनर है एंड ए हैज गिवन अ गारंटी, ए हैज गारंटीड सी दैट योर प्रॉफिट शुड नॉट बी लेस देन सी. तो यहां जो भी डेफिशिएंसी आएगा, जो भी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द गारंटीड अमाउंट आएगा, दैट हैज टू बी बोर्न बाय ए हिमसेल्फ. इसके ऊपर थोड़ी से हम बात भी करते हैं. जैसे पहला कंडीशन है कि ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट एज इफ देयर इज अ नो गारंटी एग्रीमेंट. So profit and loss appropriation account debit to all partners capital account. Normally जब भी हमारे पास कोई गारंटी का एग्रीमेंट नहीं होता तो हम प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और इसी तरह लॉस के लिए वाइस वर्सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. नेक्स्ट है ऑन चार्जिंग डेफिशिएंसी टू गारंटीइंग पार्टनर्स. सो गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। ये क्यों होगा, कैसे होगा, इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। A, B and C are three partners. Their profit and loss ratio is 5:3:2. A and B has given a guarantee to C that his share should not be less than rupees 28,000. So this is the guaranteed amount. This minimum amount is the guaranteed amount. Now firm's profit are given as below. पहला, जब फर्म की प्रॉफिट 2 लाख की है। सेकेंड, जब फर्म की प्रॉफिट 1,40,000 की है। और तीसरा, जब फर्म की जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए की है। ओके, सो आप क्या करो, सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। केस 1 बहुत सिंपल है। मैं टी शेप में एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन आपके लिए बना देता हूं। दीज आर वेरी सिंपल। सो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सो दिस इज योर क्रेडिट साइड एंड दिस इज योर डेबिट साइड। तो आपने यहां बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके और यहां आपने 2 लाख रुपए प्रॉफिट का लिख दिया। ओके, और इसमें कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को सिंपली डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में। तो बेसिकली दिस इज योर डिविजिबल प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट हैज टू ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ ए, बी एंड सी। तो डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू सो ए, बी एंड सी। तो जब इसको ट्रांसफर करने वाले हैं आप, तो क्या करेंगे, सिंपली 2 लाख into 5/10, that is 1 lakh for A, 3/10 of 2 lakh, that is 60,000 for B, and 2/10 of 2 lakh, that is 40,000 for C. तो ये आपने 2 लाख की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। So here we are only concerned with C's share of profit. Why? Because C was a guaranteed partner. C was a guaranteed partner, and his minimum amount, guaranteed amount was 28,000, but his actual share of profit is 40,000. तो आपको पता है जब एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट आपके गारंटीड अमाउंट को एक्सीड कर रहा है, देन गारंटी विल नॉट वर्क। व्हाई नॉट वर्क? बेसिकली जो आपको मिनिमम अमाउंट प्रॉमिस किया गया है उससे आपको ज्यादा मिल रहा है, तो आपको एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट ही उस टाइम में मिल जाएगा। तो इसलिए गारंटी केस 1 में क्यों नहीं काम करा, यहां इसलिए नहीं काम करा क्योंकि योर एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहां हम कर लेते हैं, योर एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, your actual share of profit is more than the guaranteed amount. इसी तरह केस 2 की बात हम कर लें। यहां फिर से हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। ये टी शेप में मैं बना रहा हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां हमने जो 1,40,000 का प्रॉफिट है वो हमने यहां लिख दिया। ओके, सो ये 1,40,000 का प्रॉफिट है। अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन फेवर ऑफ ए, बी एंड सी। सो दिस इज योर डिविजिबल प्रॉफिट एंड विच इज ट्रांसफर्ड टू ए, बी एंड सी। सो 1,40,000 is being distributed between A, B and C in the ratio 5/10, 3/10 and 2/10 respectively. So 5/10 of 140 will give you 70,000. 3/10 of 140 will give you how much? 42,000. And 2/10 is of 140 will give you how much? 28,000. So this was the actual distribution of 1,40,000 ka profit. So here also the guarantee will not work. Why guarantee will not work? Because the guaranteed amount is similar to or equals to your actual share of profit. Coincidentally, your guaranteed amount is equal to your actual share of profit. So here guarantee will not work. यहाँ guarantee कितना था उसका? 28,000 का। यहाँ actually कितना मिल रहा है C को? 28,000 ही मिल रहा है। So here in this condition you find that guaranteed amount is equals to your actual share of profit. So guarantee will not work. Now moving to the third part, यहां हमारे पास प्रॉफिट थर्ड कंडीशन में 1 लाख रुपए की प्रॉफिट है। सो यहां भी हमने बना लिया। दिस इज योर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगेन इसे पे बना लिया है आपके लिए। तो यहां आपने क्या करा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके सबसे पहले आपने 1 लाख रुपीज यहां लिख दिया।
नेक्स्ट है टू डिविजिबल प्रॉफिट। टू डिविजिबल प्रॉफिट transferred to A's capital, B's capital and C's capital। तो जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे सो बेसिकली सिमिलरली वही करना पड़ेगा। 1 लाख का 5/10 दैट इज 50,000 इज गिवन टू A, 1 लाख का 3/10 दैट इज 30,000 इज गिवन टू B एंड 1 लाख का 2/10 दैट इज 20,000 गिवन टू C। अब देखिए यहां आप देख सकते हो कि वाई गारंटी विल वर्क हियर, दिस इज योर थर्ड कंडीशन, ये हमारा थर्ड कंडीशन है, इसलिए क्योंकि गारंटीड अमाउंट जो है इज लेस देन योर एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, गारंटीड अमाउंट इज एक्चुअली लेस देन, आई एम सॉरी, एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन द गारंटीड अमाउंट। ये कंडीशन हमारा पहला था। दूसरा कंडीशन था हमारा कि व्हेन द गारंटीड अमाउंट इज इक्वल्स टू योर एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट। बट इन थर्ड कंडीशन ये कौन सा कंडीशन है कि यहां हमारा गारंटीड अमाउंट लेस नहीं है, ये हमारा गारंटीड अमाउंट बेसिकली मैं यहां लिख देता हूं, हियर वी हैव द गारंटीड अमाउंट इज मोर देन द एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट। बिकॉज गारंटीड अमाउंट हमारा कितना है 28,000, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड कॉन्सेप्ट। सो हमारा गारंटीड अमाउंट कितना है 28,000 का है और एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा 20,000 का। So we can easily say that guaranteed amount of 28,000 is more than your actual share of profit of 20,000. Then we have to find the deficiency. तो deficiency के लिए in case of profit फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है, in case of loss फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है। ये प्रॉफिट में है, मैं आपको प्रॉफिट का तो उसको कैलकुलेट करके बताऊंगा, लॉस का भी मैं आपको समझाता हूं। तो डेफिशिएंसी निकालने के लिए द फॉर्मूला इज गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट। मैंने गारंटीड अमाउंट को यहां जीए ले लिया है और एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट को एपी ले लिया है। सो हियर द गारंटीड अमाउंट इज 28,000 एंड एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 20,000. So here we find there is a deficiency of 8,000. Now, who will bear the deficiency? So the deficiency has to be borne by the guaranteeing partner. आपने देखा पहले जो मैंने आपको बताया कि on charging deficiency, the deficiency has to be borne by the guaranteeing partner. तो जब डेफिशिएंसी बॉन्ड करना होता है गारंटिंग पार्टनर को, तो गारंटिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, रिड्यूस होता है। आप सबको पता है कि जब भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा इट्स सपोज टू बी क्रेडिटेड, और जब भी रिड्यूस होगा तो उसको हमें डेबिट करना पड़ता है। तो यहां गारंटीड पार्टनर को हमें क्रेडिट करना है बिकॉज देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 8,000, तो यहां हमें उनको क्रेडिट करना है और दिस डेफिशिएंसी हैज टू बी बॉर्न बाय द गारंटिंग पार्टनर, दे आर ए एंड बी इन दिस कंडीशन, तो उसको हमें डेबिट करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखो कि ये ए बी सी है, तो यहां गारंटिंग पार्टनर कौन है, ए और बी, और इनका रेशियो क्या है 5:3। तो आपको एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। मैं इसी का एंट्री यहां आपको बता देता हूं। यहां ए बी सी तीन पार्टनर हैं, 5:3:2 का शेयर है, ये आपका गारंटीड पार्टनर हो गया। सो गारंटिंग पार्टनर क्या हो गया 5:3। डेफिशिएंसी हमने अभी कितना कैलकुलेट कराया था, सो डेफिशिएंसी वाज 8,000, और इस 8,000 को ए और बी किस रेशियो में कंसीडर करेंगे, तो 5/8 और 3/8 रिस्पेक्टिवली। सो 5/8 of 8,000 that should be how much, 5,000 has to be borne by A, and 3/8 of 8,000 that is 3,000 which is supposed to be borne by B. तो इसको दिखाएंगे कैसे, आप यहां आप लिखेंगे डेफिशिएंसी बॉन्ड, और ये 5,000 आपने माइनस कर देना है। सो आफ्टर डिडक्टिंग दिस द वैल्यू कम्स डाउन टू 45,000। यहां भी आपको डेफिशिएंसी बॉन्ड लिखना है, और ये 3,000 आपने यहां से माइनस कर देना, ये वैल्यू आ जाएगी 27,000 की। यहां आपने करना है डेफिशिएंसी रिकवर्ड, और ये डेफिशिएंसी रिकवर्ड करके यहां 5,000 ए से मिला है और 3,000 बी से मिला है, तो ये आपका हो गया 28,000 which is equals to the guaranteed amount. I hope you understand this. Suppose, जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको बताता हूं, इन केस ऑफ लॉस, सपोज फर्म का लॉस होता है, तो दैट लॉस हैज टू बी बोर्न बाय ए एंड बी। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे,
जैसे मान लीजिए ए बी एंड सी 3 पार्टनर हैं, इसका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 5:3:2 का है, ठीक है। और हमारे पास जो फर्म का लॉस है वो कितने का आ गया है, लॉस आ गया है से 1 लाख रुपीस का, 1 लाख रुपीस का लॉस आ गया है। लेकिन ए और बी ने क्या कहा, ए और बी ने कहा कि जो हम आपका जो प्रॉफिट होगा शुड नॉट बी लेस देन 28,000 इन एनी केस। लेकिन क्या आ गया है, लॉस आ गया है। तो एज पर द पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट में सबको शेयर करना है तो लॉस में भी शेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिस लॉस हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। तो मैं इसके लिए क्या करने वाला हूं, सिंपली एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये जो 1 लाख का जो आपके पास लॉस है, इसको हमने क्या कर लिया, इसको 5:3:2 के रेशियो में बांट दिया। तो 5/10 ऑफ 1 लाख, so that is how much, 50,000 should be given to A, 3/10 of 1 lakh, so that is 30,000 should be given to B, and 2/10 of 1 lakh, 20,000 should be given to C। यहां हम प्रॉफिट की बात कर रहे थे कि इनको मिनिमम जो प्रॉफिट होगा, जो गारंटीड प्रॉफिट होगा, दैट शुड नॉट बी लेस देन 28,000। लेकिन यहां तो उसके पास लॉस आ गया है, तो कैसे निकालेंगे डेफिशिएंसी, कैसे निकालेंगे आप। तो मैंने अभी बताया था आपको पिछले में कि डेफिशिएंसी का मैं आपको लॉस के कंडीशन में अलग बताता हूं। सो हाउ टू कैलकुलेट द डेफिशिएंसी इन केस ऑफ लॉस, डेफिशिएंसी इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ फर्म्स लॉस, इन केस ऑफ फर्म्स लॉस। तो इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, गारंटीड अमाउंट, गारंटीड अमाउंट प्लस एक्चुअल शेयर ऑफ लॉस, एक्चुअल शेयर ऑफ लॉस। तो यहां गारंटीड अमाउंट कितना है प्रॉफिट का, 28,000, और एक्चुअल शेयर ऑफ लॉस कितना इसने बेयर करा है, तो ये 20,000 का करा है। सो इट मींस जो 48,000 का डेफिशिएंसी है हैज टू बी बोर्न बाय ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये गारंटीइंग पार्टनर हैं। और ये क्या है, गारंटीड पार्टनर है। तो आपने जर्नलिटीज इसका क्या देखा था, आपने जर्नलिटीज देखा था गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स अकाउंट, बट किस रेशियो में, तो डेफिनेटली इन द गारंटिंग रेशियो। कभी कभी कुछ स्पेसिफिक रेशियो भी गिवन होता है, जैसे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5:3 का रेशियो है। तो आप क्या करने वाले हैं, एक के लिए 5/8 ऑफ 48,000 गिवन होगा, तो इसका मतलब इजीली आप 30,000 कैलकुलेट कर लिया आपने। इसी तरह बी का आप देखें तो 3/8 ऑफ 48,000 होगा, तो इजीली आप देख लें कि 18,000 बी का भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसकी जर्नलिटीज को पास कर लेते हैं, फिर इसके में एक दो प्रोबेबल कंडीशन क्या हो सकते हैं बस कैलकुलेशन के, वो भी हम समझ लेंगे। तो जर्नलिटीज क्या होगी, गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर अकाउंट। सो इट मींस एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने कैलकुलेशन कर लिया है कि एज कैपिटल अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड बाय 30,000, बीज कैपिटल अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड बाय 18,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन इसमें कभी कभी स्पेसिफिक रेशियो भी हो सकता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन था, स्पेसिफिक रेशियो क्या हो सकता है, सिंपल, अदर देन दिस रेशियो। स्पेसिफिक रेशियो क्या बोलते हैं, अदर देन दिस रेशियो, इन अदर रेशियो। जैसे यहां एबीसी 3 पार्टनर है और A and B has guaranteed that C's share of profit should not be less than 28,000 in any case. And if any deficiency arises, that has to be borne by A and B in the ratio of say 2:1. तो ये हो गया अदर रेशियो, ये क्या हो गया 2:1 अदर रेशियो हो गया। तो जब डेफिशिएंसी आप कैलकुलेट करेंगे 48 का, तो इसका 2/3
ए को जाएगा और 1/3 बी को जाएगा। एक तीसरा कंडीशन भी हो सकता है जब सारा का सारा डेफिशिएंसी एक ही पार्टनर बेयर कर रहा हो, तो जैसे सपोज इस क्वेश्चन में गिवन हो कि ए बी सी वर द 3 पार्टनर having a share of 5:3:2 or C has guaranteed a minimum profit of 28,000. If any deficiency arises, has to be borne personally by A. Personally doesn't mean कि out of the business, business में A सिर्फ कर रहा है, तो जो भी डेफिशिएंसी यहाँ जैसे हमने 48,000 करा है तो A के प्रॉफिट से वो रिड्यूस हो जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट कंडीशन। इन शॉर्ट आपको याद 2-3 ही चीज रखनी है। गारंटीड पार्टनर और गारंटिंग पार्टनर क्या होता है, डेफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन केस ऑफ प्रॉफिट द फॉर्मूला इज गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंड इन केस ऑफ लॉस द फॉर्मूला इज गारंटीड अमाउंट प्लस एक्चुअल शेयर ऑफ लॉस। ये तो पहली कंडीशन होगी कि डेफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बहुत सिंपल सा है, गारंटिंग पार्टनर करेगा पहले तो, और सपोज कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि जैसे मैंने यहां लिया है तो ये ए और बी कर रहे हैं विद देयर रेशियो 5:3 में कर रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि वो एक डिफरेंट रेशियो में कर रहे हैं। तीसरा ये हो सकता है कि उसको पर्सनली ए कर रहे हैं। सो दीज आर द 2-3 कंडीशन जो आपको गारंटी में ध्यान रखने की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।